ગયું છે. Hello students, let us continue with our chapter number 1. Last lecture we have seen the economic activity, non-economic activity. Economic activities mainly were three types. One we have seen business, and in business we have seen his characteristics. Now we will see the objectives of business. Now there are also the objectives of business also divided into two parts. One is economic and second is social. Now first, economic objectives. First is profit. Since a business is an economic activity, a reasonable return on the employed capital must be obtained. This return is profit. To earn profit is essential not only for the existence of the business but also for the growth of business. Profit is a motivating force, barometer of efficiency and the lifeblood of business. These days, the concept of reasonable profit is accepted instead of maximum profit. By earning reasonable profit, a business unit gets acknowledgement in the society along with earning fair profit. A business unit can be acknowledged by the society and can survive in the competition by earning fair profit. इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स में हमने देखा कि बिजनेस में मेन इज प्रॉफिट. हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमें रिजनेबल कुछ अर्न होना है. द अर्न प्रॉफिट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस. ये हम जो कुछ भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो सिर्फ बिजनेस को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए नहीं बट उसका ग्रोथ करने के लिए भी है. Or we should earn a fair profit. A business unit can be acknowledged by the society and can survive in the competition. ये competition market में हम कैसे survive हो सकते by earning fair profit. Now second is maximization of wealth. The object of profit is a short-term concept related with annual income of business. Maximization of wealth is a long-term objective. मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ क्या है? लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है. जो हमारा ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट का, दैट इज अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट. द प्रोजेक्ट विच इंक्रीज द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट ए लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड. जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा इंक्रीज द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट ए लॉन्ग रन शुड एक्सेप्टेड. इन द सर्कमस्टेंसेस लाइक डिप्रेशन, business has to give up the objective of profit. The objective of maximization of wealth is related with the economic benefit of the owner of the business. The objective of maximization of wealth किस रिलेटेड है? विद द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस. जो भी बिजनेस का ऑनर है उसके लिए ये बेनिफिट है. Third is other economic objectives include economic development and growth of business, expansion of market, best possible utilization of resources, application of modern technology. हमारे दूसरी जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें दिस इज इंक्लूडेड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज करना है. नाउ सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. नाउ सम सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन प्रायोरिटी बाय बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी. Business is due to society. Therefore, the importance of the objectives other than profit is accepted. Social objectives are given below. So, in existence of business is not possible without society. Society के बगैर
बिजनेस का अस्तित्व नहीं है. बिजनेस इज ड्यू टू सोसाइटी. बिजनेस जो है वो क्यों है? सोसाइटी की वजह से. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स अदर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा भी दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को इम्पोर्टेंस देना है. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. It has become necessary for the business to be aware of the interests of the different groups of society because consumers awareness, states restrictions, consumers education, consumers associations, different interest groups or classes of society such as owner, employees, customers, creditors, governments are associated with business unit, and these different groups have different interests with business. ये जो भी अलग अलग हमने डिफरेंट ग्रुप्स देखे, ये सबका इंटरेस्ट बिजनेस में अलग अलग होता है. इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दिस different groups. The business has to abide by maintenance of environment, Employees Welfare Act, Factory Act, Consumer Protection Act. ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी है. जहाँ बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ है या उनका वेलफेयर के लिए, फैक्ट्री के लिए जो मजदूर काम कर रहे हैं, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन के लिए या मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करना, द बिजनेस हैज़ टू अबाइड. ये बाई ये सारे रीजन से. ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. द अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे. हम जानते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार दिन पे दिन बढ़ता रहता है. सम बिजनेस यूनिट्स आर एस्टेब्लिश विथ ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. For example, Khadi and Cottage Industries Commission selects those industries which provide employment opportunities. और ये समाज में कुछ ऐसे भी लोग काम करते हैं जो एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी नया क्रिएट करते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट ये होता है. जैसे खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Preference is given to the establishment of business units in backward areas to provide employment to unemployed. जो बेरोजगार है उनको रोजगारी मिले, इसलिए ऐसे यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स को बैकवर्ड एरियाज में एस्टेब्लिश किया जा रहा है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो. ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. It is the objective to provide quality goods and services in order to make them easily available to the people of society. हमारे समाज में सब लोगों को आसानी से गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड हो और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो, so that they can satisfy their needs. The unit manufacturing spices used in cooking, cold drinks, food products have to maintain the standard of high quality. ये सारी जो चीज़ है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स है और जो भी हम कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, सो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस ऑल्सो रिक्वायर्ड. Business units having social objectives are committed to provide goods and services at fair price. For example, delivery of goods at home, after sale service, installation of goods, etc. ये भी हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स ये भी हम देखना है, फेयर प्राइस से भी मिले और ये सर्विस भी प्रोवाइड हो, अच्छा गुड्स मिले और उसकी सर्विस भी अच्छी मिले. Objectives to adopt fair trade practices, black marketing of products, accumulation of goods, misleading advertisement are unfair practices in business. बिजनेस में हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है जो हमें मिसगाइड कर सकती है, प्रोडक्ट्स का ब्लैक मार्केटिंग करते हैं. आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स मस्ट नॉट बी क्रिएटेड. और आर्टिफिशियल
स्कैरसिटी भी एसेंशियल गुड्स की मार्केट में क्रिएट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए. बिजनेस यूनिट्स मस्ट अडॉप्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ कस्टमर्स एंड सोसाइटी. कस्टमर्स एंड सोसाइटी के लिए ये ट्रेड प्रैक्टिसेस का ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ताकि सबका अच्छे से फेयर हो और वेलफेयर भी हो. अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? टू एस्टैब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी, एक समाज में एक स्पेशल आइडेंटिटी हो. टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फील्ड में कुछ रिसर्च का काम किया जाए. टू बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल होना है. एंड टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द सेम, और सरकार को कोऑपरेशन देना है. To provide various incentives to the employees and execute welfare schemes for them, और एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ऐसी वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए या उसको वेरियस इंसेंटिव्स को प्रोवाइड किया जाए. नाउ बिजनेस रिस्क, there is an uncertainty of profit or risk or loss in the business. बिजनेस में हमने सेकंड पॉइंट जो देखा था, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. इट कैन बी सेड दैट प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क. बिजनेस में जो हमने रिस्क लिया और उसके रिवॉर्ड के सामने हमें क्या पाया? प्रॉफिट. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस, नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क. नाउ which are the natural risks? Natural risks like earthquake, flood hinder the growth of business and destroy or damage the assets of business. और ये सारी चीज़ earthquake या flood आने से हमारा बिजनेस का ग्रोथ या हमारी एसेट्स ऑफ बिजनेस को डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देता है. द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर नेचुरल रिस्क. हमारा ये नेचुरल रिस्क के सामने हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ऐसे ही मैन मेड रिस्क है. मैन मेड रिस्क हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड एज ए रिजल्ट बिजनेस हैज़ टू सफर द लॉस. दिस रिस्क आर स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन द टेस्ट एंड डिमांड ऑफ कस्टमर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिस्क ऑफ कंपटीशन इन मार्केट एंड सो ऑन. ये दिस आर द रिस्क क्रिएटेड बाई men. सो कभी स्ट्राइक्स हुआ एम्प्लॉई का, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ या डिमांड ऑफ कस्टमर्स में चेंज आया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर है, दिस आर ऑल मैन मेड रिस्क. नाउ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क. विच आर द कॉजेज? चेंज इन टेक्नोलॉजी आर Changes are necessary in production method due to inventions and technology. New technology is to be adopted to produce higher quality goods. New machineries have to be installed for the replacement of old machineries. ये बिजनेस रिस्क के कोजेस क्या है, प्रकार क्या है या कारण क्या है? तो हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी को चेंज करना ज़रूरी है, बिकॉज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स, गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. द कस्टमर्स में टर्न टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, बॉल पेन इन प्लेस ऑफ फाउंटेन पेन, वेसल्स ऑफ स्टील इन प्लेस ऑफ कॉपर एंड ब्रास, टेलीविजन इन द प्लेस ऑफ रेडियो. ये थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स. कस्टमर्स में टर्न टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट में कस्टमर चेंज कर देते हैं. जैसे कि फाउंटेन पेन बंद हो गई तो बॉल पेन शुरू हो गई और रेडियो के बजाय टेलीविज़न आ गया. थर्ड इज कंपटीशन. अ कंपटीशन इंक्रीजेस द बिजनेस रिस्क विच डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस प्रॉफिट. द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूस एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी incurred by business unit to maintain its position in market and to face competition. Thus profit gets reduced. मार्केट में कंपटीशन है तो नेचुरली बिजनेस में रिस्क
इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रॉफिट को इफेक्ट करता है. द सेल ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी रिड्यूस, और उसके लिए जो प्रोडक्ट की प्राइस है, सेल प्राइस है, उसको रिड्यूस करना पड़ता है. और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को भी इनकर्ड होता है, ताकि उसका बिजनेस में पोजीशन को मेंटेन कर पाए मार्केट में भी, और कंपटीशन को फेस कर पाए. लेजिस्लेशन. गवर्नमेंट formulates law regarding pollution, customers, worker, industry, etc. But these laws pose risk for business. For example, Minimum Wages Act and Factory Act, they hinder the business in decision making. ये गवर्नमेंट के कुछ लॉज की वजह से भी बिजनेस में रिस्क आते हैं. अनसर्टनिटी ऑफ डिमांड. जो डिमांड है वो अनसर्टनिटी होती है. प्रोडक्ट क्रिएट्स द रिस्क फॉर द बिजनेस. क्यों? क्योंकि चेंजेस इन कस्टमर्स इनकम, टेस्ट, प्रोडक्ट प्राइस, इन्फ्लेशन create uncertainty for demand, which also affects the profit of business. And last is physical risk. Damage to the assets which are utilized in business creates physical risk. Non-functioning of machinery and equipments, damage in transit of goods create physical risk. These are the causes of business risk. So we have cleared the three parts of, out of three, one clear, the business. Next lecture we will see the second part of activity, economic activity, that is profession. Thanks.